ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسکرین پر اس تصویر کو دیکھیے۔ ان کا نام ہے محمد معید خان، ایودھیا کے بھدرسا کے رہنے والے ہیں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، ان پر ریپ کا آروپ لگایا گیا۔ کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی تتھ نہیں ملا، اس کے باوجود ان کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ اس کے بعد عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے، ان کا جرم ثابت ہونے سے پہلے UP پولیس نے، یوگی آدتیہ ناتھ نے اور اتر پردیش کی سرکار نے ان کے گھر کو بلڈوز کر دیا، ان کی بیکری کو بلڈوز کر دیا گیا اور ان کو سب سے بڑا ریپسٹ بنا کر پیش کیا گیا۔ میڈیا نے تو اہم کردار نبھایا۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے باضابطہ اسمبلی میں معید خان کے ریپسٹ ہونے کا اعلان کیا، ان کے جرم کا اعلان کیا اور کہا، میں نے معید خان کو سبق سکھا دیا ہے۔ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تھا، اس کی عزت کو لوٹا تھا اور اس کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھے گی۔ اور اب عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے کہ معید خان بے قصور ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، انہوں نے لڑکی کے ساتھ ریپ نہیں کیا تھا۔ جس نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تھا، جس کا لڑکی کے ساتھ سیکسول تعلق تھا، اس کا نام ہے راجو خان۔ اب سوال یہ ہے کہ معید خان کو 2 سالوں تک جیل میں رکھا گیا، معید خان کی بیکری کو بلڈوز کر دیا گیا، معید خان کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا۔ تمام ٹی وی چینلوں نے، تمام میڈیا ہاؤسز نے 1 مہینے تک دن رات یہی خبر چلائی کہ معید خان ریپسٹ ہے، مجرم ہے، اور اس تصویر کو ہائی لائٹ کیا گیا، دکھایا گیا۔ دیکھو، سر پر ٹوپی، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، مسلمان، اور یہ لوگ دکان چلانے کے نام پر، کاروبار کے نام پر ہندو لڑکیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں۔ کوئی ان کی دکان پر سامان خریدنے آتا ہے، اس کو دکان کے اندر بلایا جاتا ہے اور اس کا ریپ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا نریٹو چلائے گا۔ حالانکہ جب میڈیا میں اس طرح کی خبریں چل رہی تھی، یہ نیگیٹو پروپیگنڈا چل رہا تھا، اس وقت بھی ملا ٹائمز نے یہ سچائی بتائی تھی اور ملا ٹائمز نے پورے پروف کے ساتھ کہا تھا کہ جو ریپ کا معاملہ ہے، اس کے نوکر کا معاملہ ہے، اس کے ہاں جو کام کرتا ہے راجو خان، اس سے جڑا معاملہ ہے۔ معید خان کا اس پورے معاملے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ ملا ٹائمز کی نیوز رپورٹر اور اینکر روبا انصاری نے اس وقت بھی پوری سچائی پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ معید خان کی بیکری میں کام کرتا ہے راجو خان۔ اس کا اور اس لڑکی کا، جس کو پیڑتا بتایا جا رہا ہے، آپس میں تعلق تھا، دونوں کے رشتے اچھے تھے اور بار بار وہاں بسکٹ لینے آتی تھی۔ آپسی رضامندی سے ان دونوں کے درمیان جنسی تعلق قائم ہوا۔ اس کے بعد وہ لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس لڑکی کی ماں کو پتہ چلتا ہے، اس کی ماں پکڑتی ہے کہ بیکری میں جو لڑکا کام کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے ریپ ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں پولیس اسٹیشن جاتی ہے، FIR درج کرواتی ہے، لیکن پولیس صرف بیکری میں کام کرنے والے راجو کے خلاف FIR درج نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ معید خان کے خلاف بھی FIR درج کر لیتی ہے۔ میڈیا میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش کی اسمبلی میں اس پورے مدعے کو پیش کیا۔ ان کی بیکری کو بلڈوز کر دیا گیا، ان کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا۔ یہ جو پورا معاملہ ہے سال 2024 کا ہے۔ سال 2024 میں 29 جولائی کو معید خان اور ان کے ہاں کام کرنے والے راجو خان کے خلاف FIR درج ہوئی اور اگلے ہی دن یعنی 30 جولائی 2024 کو راجو خان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ معید خان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا اور 1 اگست کے بعد اس پورے معاملے پر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ 3 اگست کو بلڈوزر کی کارروائی کی گئی اور راجو خان معید خان کی جو بیکری ہے اس کو بلڈوز کر دیا گیا۔ پھر معاملہ کورٹ میں پہنچا، انویسٹیگیشن چلتی رہی، DNA کی رپورٹ آئی اور 30 ستمبر 2024 کو DNA کی جو رپورٹ ہے وہ سیل بند لفافے میں پیش کی گئی، جس میں سمپل تھا، اور جنوری میں پورا معاملہ سامنے آ گیا۔ 28 جنوری کو لوکل عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا DNA کی بنیاد پر، جس میں کہا گیا کہ راجو خان کا جو DNA ہے وہ پوزیٹو پایا گیا، لیکن معید خان کا جو DNA ہے وہ نگیٹو پایا گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ یا جو پیڑتا ہے، جو وکٹم ہے، اس کے ساتھ راجو خان نے سمبند بنایا تھا، اس کا تعلق تھا۔ معید خان کا کچھ بھی اس پورے معاملے سے لینا دینا نہیں ہے۔ معید خان نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ دیکھیں،
पीड़िता की विक्टिम की मां ने यह दावा किया बार बार पुलिस के बयान में, अदालत में भी, कि उस लड़के ने रेप करते वक्त उसकी वीडियो बना ली थी। कभी कहा गया कि बेकरी के बाहर एक दरख्त है और वहां पर लड़की के साथ संबंध बनाया गया, उसका रेप किया गया। कभी उसकी मां ने दावा किया कि बेकरी के अंदर उसके साथ संबंध बनाए गए, उसके साथ रेप हुआ, उसकी वीडियो बनाई गई, जबकि वीडियो पेश नहीं कर सकी ना तो उसकी मां, ना राजू खान के मोबाइल में ऐसी कोई वीडियो मिली, ना मोईद खान के मोबाइल में ऐसी कोई वीडियो मिली, नहीं उस लड़की के मोबाइल में ऐसी कोई वीडियो मिली। जबकि मां दावा करती रही कि उसकी वीडियो बनाई गई, उसको ब्लैकमेल किया गया, उसको परेशान किया गया, लेकिन ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिल सकी। उधर मोईद खान ने पहले ही दिन कहा कि उसका इस पूरे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं मोईद खान को ये खबर है कि किसी लड़की के साथ उसके यहाँ काम करने वाले राजू खान का कोई संबंध है। इसके बावजूद मास्टर माइंड और कलेदी मुजरिम, मुलजिम भी नहीं बल्कि मुजरिम मोईद खान को मीडिया ने बना दिया, सरकार ने बना दिया, और अब अदालत से फैसला आया तो वो बेगुनाह साबित हुए, बेकसूर साबित हुए। अब सवाल यह है कि मोईद खान की इज्जत को बर्बाद किया गया, उनको 2 साल तक बदनाम किया गया, उनकी पहचान बन गई रेपिस्ट की। दुनिया भर की मीडिया में तस्वीर छप गई कि दाढ़ी टोपी वाला रेपिस्ट है। अब क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसका मुआवजा अदा करेगी? क्या मोईद खान से योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगेंगे? मोईद खान की बेकरी को बुलडोज कर दिया गया, क्या उनकी बेकरी बनाकर दी जाएगी? अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि मोईद खान बेकसूर है, राजू खान जिम्मेदार है। लेकिन क्या अदालत को फैसला इतना ही तक सुनाना चाहिए था? बल्कि अदालत को, सरकार को भी सरजनिश करनी चाहिए थी। सरकार से अदालत का मुतालबा होना चाहिए था कि वो मोईद खान को मुआवजा अदा करे, हर्जाना अदा करे, और मोईद खान की जो बेकरी तोड़ी गई, उसको जो बुलडोज किया गया, बेकरी को बनाकर दी जाए। क्या ये कोई कानून है, ये कोई उसूल है कि अगर किसी के यहाँ काम करने वाला किसी मामले में मुलव्विस पाया गया, उसका कोई जुर्म साबित हो जाता है, तो क्या उस कंपनी के मालिक को ही मुलजिम ठहराया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा या उसके खिलाफ? और अगर इसी को उसूल बनाया जाए, पैमाना बनाया जाए, तो फिर कोई भी नहीं बच पाएगा, बल्कि बड़ा से बड़ा अरबपति, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन इस फहरिस्त में आ जाएगा कि अगर उसका कोई अदना सा नौकर भी किसी काम में मुलव्विस पाया जाता है, कोई जुर्म उससे सादिर हो जाता है, तो फिर उस कंपनी के मालिक को सज़ा दी जाए, उस कंपनी पर, उस फैक्ट्री पर, उसके दफ्तर को बुलडोज कर दिया जाए। लेकिन ऐसा मामला नाम देख कर क्या जाता है, इलाका देख कर क्या आता है, पार्टी देख कर क्या आता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, और पिछले दिनों में भी ये बात सामने आई थी, कि मोईद खान सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि उनका समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक़ था। वो लोकल समाजवादी पार्टी के लीडर थे, और सरकार को एक तीर से 2 निशाना लगाने का मौका मिल गया। एक तरफ मुसलमानों को टारगेट करने का मौका मिला, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को निशाना बनाने का मौका मिला, और एक साथ 2 निशाना बनाया, यानी एक तीर से 2 निशाना बन गया उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का। मुसलमानों को भी उन्होंने टारगेट कर दिया, उधर समाजवादी पार्टी की भी उन्होंने इमेज ख़राब कर दी। ये सब ऐसे मौका पर किया गया जब बीजेपी के कई नेता के रेप का मामला सुर्खियों में था। लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर कुलदीप सिंह सेंगर का मामला सामने आया और उसको बरी कर दिया गया। जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, वो लड़की रो रो कर परेशान होती रही, प्रोटेस्ट करती रही। कुछ लोगों ने तो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ज़मानत को रद्द किया, दोबारा उसको जेल भेजा गया। अब जो सच्चे रेपिस्ट हैं, जो लड़कियों की इज्जत को लूटते हैं, लड़कियों को घर बुलाते हैं, जॉब देने के नाम पर, मुलाजमत देने के नाम पर वो लड़कियों के साथ रेप करते हैं, उनके घर को बुलडोज नहीं किया जाता, उनकी फैक्ट्री को बुलडोज नहीं किया जाता, और जिनका रेप से कुछ भी लेना देना नहीं होता, उनके घर को बुलडोज किया जाता है। उस लड़की ने भी कभी दावा नहीं किया कि मोईद खान ने मेरे साथ रेप किया था। एक होता है कि लड़की दावा कर रही है, विक्टिम दावा कर रही है, वो आरोप लगा रही है, लेकिन जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ उसने भी कभी मोईद खान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। उसकी मां ने इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम को सच मान लिया गया। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, और मीडिया ट्रायल होने का जो सिलसिला है अब बंद हो जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि मिल्लत टाइम्स ने जुलाई 2024 में ही पूरी हकीकत को, पूरी सच्चाई को एक्सपोज कर दिया था।
और आज 28 जनवरी 2026 को मिरर टाइम्स की रिपोर्ट सच साबित हुई, हकीकत पर मबनी साबित हुई। और मिरर टाइम्स ने जो कहा था कि पूरा पॉलिटिकल मामला है, जानबूझकर मुसलमान होने की वजह से और सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने की वजह से मोहित खान को फंसाया जा रहा है, उनके घर को बुलडोज किया जा रहा है, वही बात सच साबित हुई है। आगे मैं पुरानी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मिरर टाइम्स के कॉन्क्लेव की तैयारी जारी है। 2 फरवरी को मिरर टाइम्स के 10 साल मुकम्मल होने पर दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। 3000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, इसलिए तमाम लोगों को मिरर टाइम्स की तरफ से हम कॉल कर रहे हैं वापस, ताकि जो लोग आने के लिए सीरियस है तो वो अपनी संजीदगी को दिखाए, पता चले कि वो सीरियस है। और उनके लिए बेसिक एंट्री फीस रखी गई है और उसके बदले में मिरर टाइम्स की तरफ से आपको बहुत सारा गिफ्ट भी दिया जाएगा। अयोध्या में 16 साल की नाबालिग लड़की के गैंगरेप और उसके गर्भवती होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में 65 साल का सपा नेता मोहित खान और उसके बेकरी में काम करने वाला राजू आरोपी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दखल के बाद 2 दिन के अंदर ही मोहित खान की बेकरी और उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर के जरिए ढा दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश में कई सारे रेप हो चुके हैं, लेकिन किसी भी मामले में आरोपी का घर नहीं ढाया गया, क्योंकि वो आरोपी ना मुसलमान था ना ही सपा का नेता। पिछले 2 महीने में मेरठ, फतेहपुर, बदायूं, उन्नाव, हरदोई समेत यूपी के कई इलाकों में माइनर से रेप की घटना सामने आई। इनमें से कुछ घटना रेप के बाद हत्या की भी थी, लेकिन किसी भी मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। ये मामले सदन में नहीं उठाए गए, ना ही इन मामलों में परिवार वालों से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यहाँ पर सवाल यही है कि एक ही जुर्म के लिए अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सजा क्यों? सवाल यही उठ रहा है कि इस घटना के पीछे योगी सरकार गंदी सियासत क्यों कर रही है। रेप के 75 दिन के बाद जब लड़की के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई, उसके बाद ये मामला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा। यह पहुंचाया गया क्योंकि इस मामले में आरोपी सपा का नेता और मुसलमान हैं, इसलिए इस मुद्दे को बाकी मुद्दों से ज़्यादा तूल दिया जा रहा है और राजनीति की जा रही है। मोहित खान, जिसकी बेकरी प्रॉपर्टी को रेप के आरोपों के बाद बुलडोजर से ढा दिया गया, उसके परिजनों का कहना है कि लड़की मोहित खान के बेकरी पर अक्सर आती जाती थी और नौकरी करने वाले राजू से उसका अफेयर था। राजू इस बात को पुलिस थाने में चीख चीख कर बता भी रहा है कि मोहित का इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मोहित सपा से जुड़े हैं, मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें फंसाया गया। इस मामले में उनका नाम जबरन जोड़ा गया। यही नहीं, मोहित खान का परिवार डीएनए टेस्ट की भी मांग कर रहा है ताकि सच सबके सामने आ सके। अयोध्या गैंगरेप केस में सियासत तेज हो गई है। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने पीड़िता के साथ न्याय की मांग की। अखिलेश ने कहा कि इस मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार में संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए, यही न्याय की मांग है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। 1 अगस्त को सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाया था। अयोध्या के पीड़ित परिवार से शुक्रवार 2 अगस्त को सीएम योगी ने मुलाकात की और उन्होंने परिजनों को ये आश्वासन दिया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगले दिन प्रशासन अपने सुरक्षा बंदोबस्त के साथ मोहित खान के घर पहुंच गई। सुबह A1 नाम की उसकी बेकरी सील कर दी गई, फिर उसे ढा दिया गया। टीम उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी ढाने पहुंची थी, लेकिन वहां किराए की दुकानें उठी थी। इसके बाद टीम ने नोटिस लगा दिया। दुकानदारों ने कॉम्प्लेक्स खाली किया, फिर उसे भी ढा दिया गया। इससे पहले इस केस में भदरसा नगर पंचायत चेयरमैन राशिद खान पर भी एफआईआर दर्ज की गई। उन पर पीड़ित परिवार को सुलह के लिए डराने धमकाने और प्रेग्नेंट बच्ची को गर्भ गिराने के लिए दबाव बनाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और आपने सुना मिरर टाइम्स की इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को। मिरर टाइम्स इसी तरह सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए। मिरर टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।